Assalamu alaikum. Uh, I am Muhammad Rahman. Today our guest is S. Nissan from India. Sir, Assalamu alaikum and welcome to our program. Thank you. Thanks a lot, Mahmoud. So my short introduction is I'm Muhammad Rahman from Pakistan, and I done my MPhil in Food Sciences and Technology from Agriculture University, Tandojam, and now the last 4 years I'm working in as a R&D, research and development in new food products, new food products in fruit products, juices, ice creams, and jam, ketchup, mayonnaise, and other food, Turkish salad, and pickle. These projects I done in the previous 4 years. Now I am in a teaching field in a school, and this and also I'm working in online field in Canva, Fiverr, or is- or Adobe Illustrator. These are works I done. This is my short introduction. And now, sir, tell me about your. So yeah, Jai Jagat to everyone. I think so. This is another opportunity for me to connect in Pakistan. As I visited Pakistan this year in August for 24 days, I went to like Lahore, Karachi, and Shikarpur. So it was amazing time in Pakistan. As I'm a Gandhian peace activist, so I talk about Mahatma Gandhi and non-violence around the world. So last 6 years, I've been traveling in traveling in 47 countries in America, Africa, Europe, Asia, North, South America, and Middle East. Not Middle East, but yeah, Central Asia and Afghanistan through India. So I spread idea of non-violence. I'm basically an engineer in electronics and telecommunication, and I work only 6 months in a telecom, but yeah, then I work with the Gandhian organization because it's very important to talk about non-violence. As all of you know that Gandhiji gave us India independence. India he fought with non-violence, and that's never happened in human history, like in a massive scale. One person stood with idea of non-violence and fought. So I think so. That was my inspiration to share his idea of non-violence and truth across the world. So yeah, this is my short introduction. Now I'm in Tamil Nadu, South India, and yeah, working on some project here. So, sir, Thank you. where you get the this idea in a bicycle tour in a bicycle all over the world? So idea was basically what happened at the age of 17. Uh, many thoughts came into my mind, and the ultimate thing I realized that the world we are living is maybe not real, and I question everything in life. And the biggest question emerged, and that was who exactly we are, who exactly we human beings are. And I think so that's very essential question as to live on this planet Earth. And so, in search of that question, I left my home in search of truth with any transport. I started my journey with a truck and then train. So it just was for one day. I came back home and the next day, and then onward, I become engineer and work in another in telecom field. But yeah, that was not my destiny, so I quit and everything. So cycling, I think so, and walking, it's very a connective medium to with the local people. Like wherever you go on bicycle or walk, you can connect with people. Like walking, I think so is more powerful than bicycle. I found. I rode around. Sorry, I ride a bicycle around like 25,000 kilometers, and then I did a walk that was like 15,000 kilometers. So 20 countries I did a bicycling, and then when you cycle, like your bicycle become like attraction to the people, and you can talk with anyone, you can stay with anyone. People offer you food. So walking is very great media to communicate with people and with nature. So that was one of the things I choose to be on a bicycle.
instead of just taking a car and roam. Your voice is very slow. Sorry. Hello. So voice is very slow, sir. Can you repeat the question? Sorry. So your voice is very slow. Yeah, my phone is Can you yeah. speak in Urdu? My Can you phone speak is in Urdu? kind of problem. Hello. Can you speak in Urdu? Can I what? Sir, I say, can you speak in Urdu? Urdu. Yeah, this Hindi I speak. Yeah, I can speak. Yeah, Urdu is Hindi same also. Yeah, मैं बोल सकता सर हूँ हिंदी हिंदी उर्दू में ये बात तो कर सर सकता हूँ. आसान काम है। फिर तो Sorry. आसान काम है। फिर तो आसानी से है ना, वो हिंदी और उर्दू में कोई इतना फर्क नहीं है। हाँ, इतना फर्क नहीं है. मैं उर्दू समझ सकता हूँ और बोल सकता हूँ. नेक्स्ट वही काइंड हिंदी और उर्दू काइंड सिमिलर है. सही सही लेकिन इसी मेरी मातृभाषा मराठी है. आ, सही जो काफी सिमिलर टू हिंदी और उर्दू के नजदीक है, तो बोल सकता हूँ मैं आराम से. सही। सर इसमें डिफिकल्टीज कहाँ कहाँ पे आपको आई जब आपने ये स्टार्ट किया, बाईसाइकिल पे निकले? तो आपने 150 एनिवर्सरी थी महात्मा गांधी की जब आपने ये स्टार्ट किया सफर। तो सर ओवरऑल जो आपने कंट्रीज घूमे हैं उसके अंदर मतलब सब का सब जो आप रोड में आपके निकल गए, पर आप जा तो सके आराम से? हाँ, लेकिन बहुत सारी डिफिकल्टी थी, जैसे कि वीजा. ऐसे कि मेरे पास पासपोर्ट नहीं था, तो जी वीजा बनाना, पासपोर्ट बनाना पड़ा. फिर उसके बाद वीजा लेना एक बहुत बड़ा चैलेंज है. जैसे इंडिया पाकिस्तान, पाकिस्तान तो काफी डिफिकल्ट है, लेकिन इंडिया के लिए थोड़ा सा इजी है, फिर भी उतना इजी नहीं है. तो वीजा लेना हाँ बहुत ही डिफिकल्ट टास्क है दुनिया में. जैसे अमेरिका का वीजा हो, जर्मनी, जापान, तो इन देशों का वीजा, और बहुत समय निकल जाता है उसमें. तो वीजा में मुझे बहुत समय लगा इस यात्रा में. बाकी जो पैसे की सबसे बड़ी चीज़ है कि पैसा, जो कि सबसे बड़ी चीज़ हम बोल सकते हैं. लेकिन इसमें मेरी यात्रा जो थी बिना पैसे की थी, तो मैं लोगों के ऊपर डिपेंडेंट था. तो जहाँ जाता था मैं लोगों के घर के सामने टेंट डालता. जैसे फकीर की जिंदगी जो होती है, जहाँ खाना जी मिले जी वहाँ खा लिया, जहाँ नहीं मिला वहाँ चल रही है. तो ऐसी जिंदगी थी वो. और इनक्रेडिबल, जो कि जो फकीर की जिंदगी जीता है वो दुनिया में कुछ भी हासिल कर सकता है. यानी उसको वो छोटी छोटी चीज़ों से कुछ फर्क नहीं पड़ता है. वो जो सीमाएं होती है जो इस इंसान ने रखी है, वो भूल जाती है पूरी. तो उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होती कि कोई लैंग्वेज हो या धर्म हो या जाति हो, कोई भी चीज़ हो, ब्लैक हो वाइट हो, वो सब एक ही दिखता है. तो मुझे लगता है कि जो बिना पैसे की यात्रा है सबसे इम्पोर्टेंट थी, और उसने मुझे बहुत सारे सिखाया. जैसे कि खाना मिलना रोज, रोज 30 किलोमीटर चलना एक वेरी डिफिकल्ट टास्क था. लेकिन मेरी मैं चल पाया. और रात को जहाँ पे भी जाता था, 5 घर जाता था और नॉक करता था उनके दरवाजे पे. तो कई लोग नहीं बोलते थे, और उनमें से कुछ लोग मुझे उनके घर पे रहने के लिए देते थे. तो हर एक दिन अलग था. हर जगह जहाँ पे मैं कदम रखता था, इस पहली बार मैंने वहाँ कदम रखा था, तो पता नहीं था कि वहाँ क्या होगा. जानवर हो गए, इंसान हो गए, या समुंदर या नदी, क्या क्या हो सकता है पता नहीं. तो एक अनसर्टन और एक क्या बोलते हैं इनटू द वाइल्ड जैसी जो जर्नी होती है, पता नहीं आगे क्या है, ऐसी जर्नी थी. और हर दिन कुछ नया सीखने को मिला. और इंसानियत को मैं अनुभव किया मैंने इस यात्रा में, क्योंकि लोग इतने प्यारे हैं दुनिया भर में. अफगानिस्तानी हो या पाकिस्तान हो, अफ्रीका हो या अमेरिका हो, हर जगह मैंने इंसानियत को ही पाया. तो एक इनक्रेडिबल एक्सपीरियंस था मेरे लिए, खुद को परिवर्तित करने के लिए. तो सर जब तक किसी के आप गए हैं जाके, मतलब फर्स्ट टाइम किसी का डोर नॉक किया, तो आगे से रिप्लाई मतलब एक कंफ्यूजन और एक चीज़ थी कि कैसे वो आगे बिहेव करेंगे, तो उनको बताने का? सॉरी. मैंने से कहा कि जैसे आपने मतलब जब जब यहाँ से निकले, तो पहले ही कंट्री जब आपने चेंज किया, तो आगे जाके आपने किसी का मतलब फर्स्ट टाइम जैसे डोर नॉक किया कि मैं फलां जगह से आया हूँ और ये मेरा टूरिज्म टूर अपना इस ये मैं निकला हूँ, तो उसके ऊपर आगे रिएक्शन उनका आपको देखने को मिला, तो उसके ऊपर आपको कंफ्यूजन या इस तरह की चीज जिसने आपको मतलब बड़ा डिस्टर्ब किया हो फर्स्ट टाइम? डिस्टर्ब तो नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन हाँ, जब मैं थाईलैंड, मेरा पहला देश था भारत के बाद,
और थाईलैंड जी। के बैंकॉक शहर में हम हवाई जहाज से उतरे। तो वहाँ पे मेरे हमारे पास तो थोड़े बहुत पैसे थे जिससे हम कुछ खा सकते थे, रहने का कुछ ऐसा नहीं था। तो सही। हम जगह गए थे और वहाँ पे एक साइकिल गाड़ी वाला, जहाँ पे जैसे कि मोटरसाइकिल पे वो लोगों को मोटर टैक्सी जिसे बोलते हैं, वैसे एक गरीब आदमी था और उसको पता चला कि हम कुछ ढूंढ रहे हैं। तो वो हमें होटल में लेके चला गया। फिर हमने बोला कि हमारे पास पैसे नहीं होटल में रहने के लिए। तो फिर वो हमें उसके घर पे लेके चला गया। फिर उसका एक पतरे का घर था, छोटा सा घर था, और उसकी बीवी था, बच्चा था। तो उसने फिर हमारे लिए खाने का प्रबंध किया, वहाँ पे खाना खिलाया हमें। फिर बोला कि चलो मेरे साथ, क्योंकि उसका रूम बहुत छोटा था। तो फिर उसने हमें एक बुद्धिस्ट टेम्पल लेके गया, और उस बुद्धिस्ट टेम्पल में हमने रात को टेंट डाल के वहाँ रहे। और हमने पूछा कि उस मॉन्क से परमिशन लेनी चाहिए नहीं चाहिए। तो बोला कि यहाँ पे कोई पूछने की जरूरत नहीं है, जो टेम्पल है ये पब्लिक प्रॉपर्टी है, सब लोग यहाँ पे आके रह सकते हैं, कोई भी आदमी जिसको रहना है रात को। तो उसने फिर पहली बार पता चला कि ऐसा भी कोई स्थल होता है जहाँ पे कोई पूछने की जरूरत नहीं, आप जाके वहाँ रह सकते हो। तो एक अच्छा। इनक्रेडिबल एक्सपीरियंस था कि पता नहीं था कि थाईलैंड जाके कैसे मिलेंगे, क्या खाएंगे। उसको भाषा हमारे नहीं आती, हमारी भाषा उसको नहीं आती। फिर हमें गूगल ट्रांसलेटर का इस्तेमाल किया, और वो काफ़ी इम्प्रेस हुआ कि भाई गांधी जी का विचार लेके हम थाईलैंड आए हैं, क्योंकि गांधी जी को बहुत रिस्पेक्ट किया जाता है, पूरी दुनिया में किया जाता है और थाईलैंड में भी किया जाता है। तो वो बंदे को बहुत अच्छा लगा कि हम कुछ ऐसी यात्रा में साइकिल पे आए हैं उनके देश में। तो ऐसी कठिनाई तो इतना इतना ज़्यादा प्रॉब्लम की बात मुझे लगता है दुनिया में कहीं नहीं हुई मुझे। हालांकि सेंट्रल एशिया जो है, सेंट्रल अमेरिका, जहाँ पे दिन में बहुत सारे मर्डर होते हैं $1 के लिए, तो ऐसे देशों में काफ़ी मुश्किल सफ़र था मेरा। लेकिन हाँ, मैं बस चलता रहा, और कभी रुका नहीं। तो बस साइकिल पे चलते चलते मैं फिर आगे चला गया। और किसी ने कोई मेरी मुझे लूटा नहीं वहाँ पे। बहुत ज़्यादा चांसेस थे, 90% चांसेस थे कि कोई आके मेरी साइकिल, सामान सब कुछ लेके चले जाए। लेकिन लकीली ऐसा कुछ हुआ नहीं, और मैं सही सलामत वो ग्वाटेमाला, हंडरस, एल साल्वाडोर जैसे देशों से आगे चला गया। और जैसे सही। साउथ अफ्रीका में भी हम गए थे। तो साउथ अफ्रीका में जो है दिन में 59 मर्डर होते हैं, 59 मर्डर्स इन अ डे। एक दिन में 59 मर्डर्स होते हैं वहाँ पे, जैसे साउथ अफ्रीका है। और उस जैसे देश में हम 2 महीना बिना पैसे यात्रा की। तो क्योंकि हमारे पास कुछ है नहीं खोने के लिए, इसलिए हमें कुछ डर नहीं था। डर तो जिसको पास होता अच्छा, है, जिसको होता है कि जो लूटता है या ज्यादा होता है उसके पास। मर्डर्स के पीछे रीजन क्या आपने कोई मालूम किया वहां से? तो इसके पीछे जो क्राइम का रीजन सबसे बड़ा होता है दुनिया में भी, इनइक्वालिटी। जैसे कि अमीर गरीब की जब ये क्या बोलते हैं इसे, गैप जब बढ़ जाता है, दोनों के बीच में जब गैप बढ़ जाता है लोगों के बीच में आर्थिक स्तर पर, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। जैसे अमेरिका में आप जाओगे तो वहाँ पे भी आपको क्राइम मिलेगा। और साउथ अफ्रीका में सबसे ज़्यादा इनइक्वालिटी है। तो इसकी वजह से एक रीज़न था। सेंट्रल अमेरिका में वही था, वहाँ पे ड्रग्स ड्रग्स का बहुत बड़ा था, क्योंकि अमेरिका की वजह से, क्योंकि वहाँ से ड्रग्स पूरा अमेरिका में जाता है, सेंट्रल एशिया से, सेंट्रल अमेरिका से। तो फिर उसकी वजह से वहाँ पे क्राइम रेट हाई है। तो क्राइम का सबसे बड़ा कारण यही होता है कि समाज में इनइक्वालिटी हो, इनजस्टिसेस हो। तो मैं जापान में जब चला गया था, तो जापान में मैंने कोई आदमी नहीं देखा कि चोरी करता है। हार्डली एक दो चोर हो गए, वैसे कुछ नहीं। लेकिन जब मैं रेस्टोरेंट चला गया था मेरे दोस्त के साथ, तो उसने उसका लैपटॉप छोड़ के, तो हम वॉशरूम चले गए, और वापस आए तो लैपटॉप उधर ही था। जैसे कि आपका पर्स गिर, पैसे का पॉकेट गिर जाए कहाँ पे, तो कोई उसे हाथ में लगाए, क्योंकि सबके पास उसका इनफ है जीने के लिए, उसे चोरी करने की जरूरत नहीं है। तो गवर्नमेंट ने और लोगों ने हर एक की जिम्मेदारी ली है। तो पाकिस्तान, इंडिया में वो प्रॉब्लम है कि हमारे देशों में गरीबी का स्तर बहुत ज्यादा है, और अमीरी जो है वो कुछ चने लोग हैं, वो सब संपत्ति को एक अपना घर पे लेके बैठे हैं। और सेम भारत पाकिस्तान में, कि बस जी। पैसा कमाना है और उसको रखना है। और जितना ज्यादा हम वो लेते हैं, वो एक्सप्लॉइटिव है, क्योंकि नेचुरली ऐसा निसर्ग में है नहीं कि भाई आप करोड़ों की जायदाद लेके, जैसे कि एनिमल है, मंकी है, तो उसके लिए पैसे कुछ हजारों टन खाना केला ला के इकट्ठा नहीं करेगा। ये 2 दिन भी लाएगा तो वो शेयर करेगा दूसरे के साथ। तो ह्यूमन ने भी, मुझे लगता है कि उससे सीखना चाहिए एनिमल से, कि जितना ज्यादा हम एक्वायर करेंगे, वो एक्चुअली वायलेंस है, नेचर के अगेंस्ट है, ह्यूमन के अगेंस्ट है। तो उसको समझना बहुत जरूरी है। तो ये सारे रीजन है कि समाज में वायलेंस होता है। जी।
तो सर थाईलैंड से आप कंबोडिया चले गए थे? जी, थाईलैंड से हम कंबोडिया गए, कंबोडिया से वियतनाम, फिर चाइना। और चाइना में तो इस तरह कि भारत से था मैं, तो उनको लगा कि मैं रॉ एजेंट हूँ, 25 ईयर ओल्ड था। तो मेरा पासपोर्ट, मेरा सामान सब कुछ चेक करके मुझे यहाँ वहाँ लेके गए। तो काफ़ी मुश्किल था इमिग्रेशन पे। जब एंटर किया तो कोई टेंशन नहीं, वहाँ पे जब एंटर किया तो बहुत प्यारे लोग मुझे मिले। और मेरे एक चाइनीज़ मदर है, सही। जिसने मेरा बहुत ख्याल रखा वहाँ पे उस बुद्धिस्ट टेम्पल में। और फिर उसने कुछ लोगों के साथ मुझे कनेक्ट करवाया। फिर बहुत सारे दोस्त मिले मुझे, बेजिंग में हो, हांगकांग में हो, मकाओ में हो। और वहाँ से फिर मैं साउथ कोरिया, सॉरी जापान से साउथ कोरिया। तो ये मेरी एशिया की जर्नी थी पूरी। सही। सर जापान में आपने क्या पाया जो मतलब डिफरेंट, क्योंकि हमने उसकी तारीफ तो काफी सुनी हुई है लेकिन आपने तो फिजिकली देखा हुआ है। तो जापान में मैं 3 महीना था। और वहाँ पे मेरा जो यात्रा थी वो टोक्यो से लेके हिरोशिमा, नागासाकी। मैंने पैदल 2 महीना पद यात्रा की, हम्म। और पहली पद यात्रा थी मेरी। तो जापान जो देश है, आपको गंदगी तो कहीं नहीं मिलेगी, क्योंकि ये तो सबको पता है कि जापान में कूड़ा वगैरह नहीं होता है। और कूड़ा हो भी तो वहाँ पे होमलेस हम्म। लोग जो होते हैं, गवर्नमेंट उनको सपोर्ट करते हैं कि जिनके पास घर नहीं, पैसे नहीं है, तो उनको बोलते हैं कि आप ये सफाई का काम करो, और वो लोग उससे भी कुछ कमाई कर लेते हैं। और गवर्नमेंट सपोर्ट करता है पूरा, जिसके पास जॉब नहीं है। और जापान में सबसे बड़ी चीज़ है कि वो हर एक चीज़ के ऊपर क्वेश्चन करते हैं। और क्वेश्चन, अरे हर एक चीज़ पे पता नहीं कितना ही कर पाते हैं, लेकिन क्वेश्चन करते हैं, और उस क्वेश्चन की वजह से वो खुद को इम्प्रूव कर पाते हैं। हमारा जो प्रॉब्लम है इंडिया पाकिस्तान का, कि हम वही जो पुरानी थॉट प्रोसेस, उससे बाहर नहीं निकल पा रहे। उससे अच्छे अच्छा ही कुछ चीज़ है उसमें, बहुत सारी अच्छी चीज़ है, जैसे कि सूफीज़्म है, और प्यार की बातें हैं, भक्ति संप्रदाय है, और बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, जैसे कि हॉस्पिटलिटी है। लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जो आउटडेटेड है, और इसका हम कंटिन्यू करते हैं। जैसे कि अभी पहले के ज़माने में क्या था कि केला खा लिया और फिर ज़मीन पे डाल दिया, तो वो सूख के फिर नेचर में चला जाता था। लेकिन अभी क्या है कि प्लास्टिक है, तो वो अभी नहीं घुल जाएगा इतने से 1-2 दिन में। तो उसको टाइम, तो वो हम समझ नहीं पाए। तो जापान जो चीज़ है, हर चीज़ का वो एनालिसिस करता है, हर चीज़ को समझता है। तो बहुत ही वो कॉन्शियस, जिसे बोलते हैं हम, चेतनामय लोग हैं जापान के। जैसे कि मैं ट्रेन में चला गया, तो ट्रेन में कोई भी आदमी एक दूसरे से बात नहीं कर रहा था, या फोन पे बात नहीं कर रहा था। हर एक आदमी अपना म्यूजिक सुन रहा था, हेडफोन लगा के। यानी इंडिया पाकिस्तान में नॉर्मली वो लाउड स्पीकर लगा देता है, सबको फ्री में म्यूजिक सुना देता है। लेकिन जापान में अपना खुद ना खुद सुनते हैं, खुद का बुक पढ़ते हैं। तो उसके ये चीज थी कि वो हर एक को अपना स्पेस दे रहे, वो पीस दे रहे सबको। और जब आप जापान में जाओगे, तो आप रियल में पीस को महसूस करोगे, क्योंकि कोई आपको दिक्कत देने वाला नहीं, ना समाज कोई बोलने वाला है, ना घर वाला कोई बोलने वाला है। आप अपने जो एक्शन है उसके जिम्मेदार आप ही हो। और हर एक आदमी दूसरे की रिस्पेक्ट करता है, उसके स्पेस पे रिस्पेक्ट करता है। जैसे कि वो जब बाहर भी जाएगा, तो एक दूसरे टकराएगा नहीं। जैसे कि हम पाकिस्तान इंडिया में चलते हैं, जैसे बहुत भीड़ हो गई, तो सब एक दूसरे से टक्कर लगाएंगे, इधर वो लग गया, उधर वो लग गया। लेकिन जापान में आप जब चलोगे, तो फिर जब आपको कोई टच भी नहीं कर पाएगा। आप हर एक आदमी अपना स्पेस निकालता है। वहाँ पे भी भीड़ होती है, लेकिन वहाँ पे अपना आदमी, किसी को दिक्कत ना हो खुद की वजह से, ऐसे वो कॉन्शियस रहता है। तो उसकी वजह से वो देश इतना आगे चला गया है। सही। तो सर जब आपने मतलब न्यू थे तो आपने किसी को अगर कन्वेंस करना हो अपनी तरफ तो फिर कैसे उनको बुला करते थे? हाँ, तो मेरा जो कैंपेन था, मोस्टली मैं कॉलेज यूनिवर्सिटी स्कूल जाता था। और मुझे लगता है वो फ्यूचर है ह्यूमैनिटी के, और उनको आइडिया महसूस करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हम जो पैदाइश हमारी एज ए ह्यूमन बीइंग की, वो वायलेंट है। जैसे कि हम जंगलों में रहते थे, वहाँ से फिर क्या हुआ ना, कि 140 के समूह में एक साथ रहते थे, 140 के गुट में रहते थे। और उसके ज़्यादा लोग रह नहीं सकते थे, क्योंकि कम्युनिकेशन वो बहुत सारी दिक्कतें थी। तो कोई बाहर का आदमी आया, तो फिर वो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए एक दूसरे को मारते भी थे। कम्युनिकेट कर पाते थे तो फिर बचते थे। तो एक इनसिक्योरिटी जोन से हम एक ह्यूमन सिविलाइजेशन एक बनाई है, जिस दुनिया भर में, हालांकि देश भी, बॉर्डर है, सीमाएं हैं। तो हम एक वायलेंट सोसाइटी की ओर से अहिंसक सोसाइटी की ओर जा रहे हैं। और मुझे लगता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आपके समाज में, आपके घर में, आपके देश में हिंसा नहीं होगी, तो आपका देश आगे बढ़ेगा। और ये रीजन हम देखते हैं, भारत में देखते हैं, जी। पाकिस्तान में देखते हैं, गरीब देशों में देखते हैं, अफ्रीकन देशों में देखते हैं। क्योंकि इंटरनल इतना कॉम्पिटेटिव है, और हर एक आदमी बोलता है कि मैं जो बोलता हूँ वही सत्य है। और गांधी जी बोलते हैं कि सत्य एक नहीं है,
सत्य आपका एक इंडिविजुअल सत्य है, क्योंकि सत्य बहुत बड़ा है। जैसे कि खुदा है, उसको एक आदमी नहीं महसूस कर सकता है, और वो सत्य जो बहुत हम्म, बड़ा है, तो वो सत्य को जानने के लिए हमें उस सत्य की ओर घूमना पड़ेगा, उसको परखना पड़ेगा, बहुत उसको समझना पड़ेगा। और पता नहीं एक आदमी उसको और सत्य पा पाएगा कि नहीं। तो जब हम सत्य हमें पता नहीं है, तो हम फिर हथियार क्यों हाथ में लेते हैं, या दूसरे को गालियां क्यों देते हैं, या मारते क्यों है। तो वही वही से एक आइडिया पनपती है, और अहिंसा है। क्योंकि हर एक इंसान जब अहिंसा के साथ रहेगा, तो हर एक को अपना अधिकार मिलेगा कि वो उसका सत्य बोले समाज के सामने, और अपने सत्य के साथ अपना जीवन जिए। तो उसका बेस्ट एग्जाम्पल जापान है। अहिंसा के साथ जो सोसाइटी अभी न्यूक्लियर बॉम्ब के बाद जिस तरह से उन्होंने अपना सोसाइटी को ऑर्गेनाइज किया है, बहुत नॉन वायलेंट है, अहिंसक सोसाइटी है। तो हमें ऐसे अहिंसक सोसाइटी की ओर जाना पड़ेगा। और इसके लिए मुझे लगता है कि अहिंसा को अपने जीवन में अपनाना, जैसे कि खाना हो अपना, जैसे कि जिसमें किसी जानवर की हिंसा ना हो। फिर हम जो कुछ पहनते हैं, कुछ इस्तेमाल करते हैं, जिससे नेचर का नुकसान ना हो। जैसे कि अभी बहुत बड़ी गाड़ी यूज की हमने, तो क्या करेगा, हम कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ेंगे, और फिर वायु प्रदूषित होगा, हवा प्रदूषित होगी, पानी प्रदूषित होगा, लोगों को भी प्रॉब्लम होगा, जानवरों को प्रॉब्लम होगा। तो ये एक प्रकार की हिंसा है जो हम नहीं देख पाते हैं। कपड़े होते हैं, जो सिंथेटिक कपड़े हम पहनते हैं, उसका जो प्लास्टिक है वो समुद्र के पानी में चला, नदी के पानी में चला जाता है, मछली खा लेती है। मछली को प्रॉब्लम होगा, फिर वो हम खाएंगे, तो हमारे अंदर भी प्लास्टिक चला जाएगा। तो ये एक प्रकार की हिंसा है। और जो कॉन्फ्लिक्ट है, जैसे भारत पाकिस्तान, जैसे भारत से चाइना है, अमेरिका रशिया, रशिया यूक्रेन, तो ये जो इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट है, उसको हम कैसे सॉल्व करें। और क्योंकि इंसान तो एक ही है, और सबसे मुझे लगता है कि इंसानियत की हम बात करें, इंसानियत की बात हम जब करेंगे, तो मुझे लगता है अहिंसा की बात है, वो पीस की बात है। तो मुझे लगता है इंसानियत ही हमारा सबसे बड़ा धर्म होना चाहिए, और उसी रास्ते पे हम सब इंसान ने चलना चाहिए। बिल्कुल सर। तो सर ये जापान से जब आप गए हैं टोक्यो और ये हिरोशिमा, तो ये वॉकिंग डिस्टेंस कितना लगा आपको? टोक्यो से हिरोशिमा लगभग 600 से 700 किलोमीटर है। और वहाँ से नागासाकी में चल नहीं पाया, क्योंकि वहाँ से, क्योंकि मैं जब हिरोशिमा पहुंचा तो 6 अगस्त को पहुंचा। 6 अगस्त यानी उनकी जो हिरोशिमा डे, जिस दिन एटम बम गिरा था, 6 अगस्त 1945 को, तो उस दिन पहुंचा था मैं। और 9 अगस्त को दूसरा ही एटम बम 2 दिन के बाद नागासाकी में गिरा था। तो 9 अगस्त को हमें वहाँ जाना था, तो हम कार से गए थे। तो लगभग 300 किलोमीटर है, और एक आइलैंड पे बसा हुआ है वो नागासाकी। और अभी पूरी तरह वो अभी एक बहुत सुंदर शहर है, हिरोशिमा नागासाकी दोनों शहर। और बहुत ही इमोशनल एक्सपीरियंस था वो मेरा हिरोशिमा का, क्योंकि जब वो बॉम्ब गिराया था अमेरिका ने, लिटिल बॉय नाम था उस बॉम्ब का। और वो जो बॉम्ब था वो जमीन पे नहीं, उन्होंने उसका स्फोट किया था। उसका जो ब्लास्ट हुआ था वो 600 मीटर आसमान में हुआ था, 600 मीटर। वहां जब ब्लास्ट हुआ तो पूरा आग का गोला सिटी के ऊपर छा गया। और उसका जो टेम्परेचर, वो प्रेशर था, उसकी वजह से घर उड़ गए, घर के धमाके हो गए, और लोग जलने लगे। और फिर जलते जलते वो नदी के किनारे आए, बहुत सारे हजारों लोग पानी पीने के लिए आए थे वहाँ पे, और वहाँ पे उनकी लाशें बिखरी गई थी। तो बहुत सारा यानी ह्यूमन हिस्ट्री का, यानी ह्यूमन जो फ्यूचर सिविलाइजेशन है आज का भी, हमें सबसे बड़ा जो डर है जिससे ह्यूमैनिटी खत्म हो जाए, वो है न्यूक्लियर बम। और हमें उसको डिसम्बल करना, डिसआर्मेंट करना, उसकी बहुत ज़रूरत है। क्योंकि आजकल लोग न्यूक्लियर बम के बारे में बोलते हैं कि अभी यूक्रेन रशिया बोलने लगा कि हम बम डाल देंगे यूक्रेन की ओर। तो ये उनको बहुत ऐसे इजी लगता है, लेकिन मरता तो इंसान है आखिरी में। आपके जितने भी कॉन्फ्लिक्ट है उसको कोई मतलब नहीं रहता। जब अभी हिरोशिमा होके चला गया, अभी 75 ईयर से ज़्यादा हो गए, तो अभी उसका कोई यानी वो नहीं है कि भाई क्यों गिरा, क्या गिरा। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ रहती है कि उसमें इंसान मरे, और वो लगभग 80,000 इंसान उस एक बॉम्ब में मरे। तो वही काउंट होता है, बाकी चीज़ों को काउंट किया नहीं जाता। तो मुझे लगता है कि हम इंसानियत की बात करें, और आप मुझे लगता है कि सब इंसान ने वहाँ हिरोशिमा जाना चाहिए, देखना चाहिए कि उसके क्या परिणाम हुए। तो जो भी जिसको पॉसिबल हो जापान जाए, हिरोशिमा देखे, नागासाकी देखे, और समझ समझ सके कि क्या इस न्यूक्लियर बॉम्ब के कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। सर उसके अभी भी इफेक्ट्स मौजूद हैं उनके पास, जगह पे? उसकी क्या?
जो उसके साइड इफेक्ट्स हैं, जो बम गिरा है उसके बाद के, अभी भी साइड इफेक्ट्स आ रहे हैं उनके? तो उस समय पे जो लोग वहाँ पे मौजूद थे, कुछ लोग, बहुत सारे लोग बचे उसमें, तो उनमें वो रेडिएशन चले गए, तो उसकी वजह से उनकी नेक्स्ट जनरेशन है उसमें कुछ डिफेक्ट हुए लोग बच्चों में। और उसमें जो कुछ लोग बचे हैं उनसे भी मैं मिला, तो उनके बॉडी पे कट थे, उसका हाथ पैर टूटा हुआ था, तो ऐसे भी लोगों से मैं मिला वहाँ पे। लेकिन जो रेडिएशन होता है, जो न्यूक्लियर बॉम्ब जो यूज इस्तेमाल किया जाता है, उसके जो आइसोटोप्स होते हैं और जो न्यूक्लियर पावर प्लांट होता है उसके जो आइसोटोप होते हैं अलग होते हैं। तो जब ये न्यूक्लियर बॉम्ब जब उसका स्फोट हुआ तो उसके रेडिएशन लगभग 24 घंटे तक रहते हैं, उसके बाद वो समाप्त हो जाते हैं। लेकिन जो फुकुशिमा में जो हुआ, जो न्यूक्लियर पावर प्लांट में जो एक्सीडेंट हुआ था 2012 ऐसे कुछ में, फुकुशिमा में जो हुआ था, तो उसका जो रेडिएशन लगभग 32 साल तक वहाँ पे रहता है, तो वो 32 ईयर्स तक हम वो फुकुशिमा एरिया में नहीं जा सकते। तो दोनों थोड़ा अलग अलग होते हैं। तो अभी तो कुछ ऐसे इफेक्ट नहीं है हिरोशिमा नागासाकी में, और उस जो जगह थी पूरी खाली कर दी उन लोगों ने, उस पर अभी नया शहर बनाया है। और बस एक ही जगह वहाँ पे एक डोम करके एक म्यूजियम था, कॉन्फ्रेंस हॉल था, तो वो बस बचा है जो उसकी मेमोरी को हम रिमेम्बर करते हैं वहाँ उस जगह पे, क्योंकि उसका बिल्डिंग पूरी गिरी हुई है, कुछ चीज़ें बची हुई है, तो उसको प्रोटेक्ट किया गया है कि लोग देखें कि क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं न्यूक्लियर बॉम्ब के। सर देन आप साउथ कोरिया मूव कर गए, तो साउथ कोरिया उसके बाद यूएसए, तो साउथ कोरिया का क्या थोड़ा सा एक्सपीरियंस शेयर करेंगे? साउथ क्योंकि कोरिया आजकल एक्चुअली वो में भी मेन लैंड में न्यूक्लियर नहीं की गया था। तरफ। तो मैं अच्छा। साउथ कोरिया का जो जेजू आइलैंड है, साउथ में है वो आइलैंड पे चला गया था। तो वो मेरा उसका ये था कि मैं अमेरिका जो सॉरी साउथ कोरिया का एक नेवी बेस है, और उसके खिलाफ मैंने वहाँ पे प्रदर्शन किया। और फिर वहाँ फिर कुछ पीस एक्टिविस्ट थे, तो उनके साथ में मिला, उनके साथ रहा और नेचर के साथ रहा। फिर वो सब करके फिर मैं अमेरिका चला गया। तो अमेरिका में लगभग 6 महीना था मैं। लगभग सैन फ्रांसिस्को से न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क से लेके पूरा टेक्सास डाउन टू मैक्सिको, ये साइकिल पे यात्रा की मैंने। और एक अलग अनुभव था ये। और जो कल्चर है, जिस तरह से उन्होंने टेक्नोलॉजी और इसका इस्तेमाल किया है, वो बहुत अद्भुत है। लेकिन उसी समय जिस प्रकार से जो एक्सप्लॉयटेशन है दुनिया भर में जो करते हैं, और वो जो सोसाइटी है काफ़ी ये है, ग्रीडी है, यानी उसको हर एक चीज़ दिखानी है दूसरे को, और बस इस्तेमाल करना, यही उनका मकसद है जीवन का, कि जीवन में हर एक चीज़ को इस्तेमाल करना है। और अभी वो अब समझ रहे हैं या पता नहीं समझ पाएंगे कि नहीं, लेकिन वो सबसे वायलेंट है। जो इंसान ज़्यादा एनर्जी इस्तेमाल करता है वो दुनिया के लिए अच्छा नहीं है। जो भी जितना अमीर आदमी है, और अमीर होना अलग बात है, लेकिन उस अमीर के पैसे से बहुत बड़ा एनर्जी यूटिलाइज करना है, यानी बहुत बड़ा फ्लाइट में, एक फ्लाइट में लेके जाना, वहाँ पे एक क्रूज लेके जाना, वो एक प्रकार का वायलेंस है। और इन लोगों से हमें बताना चाहिए कि भाई बस करो, क्योंकि जो अर्थ है ऑलरेडी कार्बन जो इमिशन है बहुत सारा अभी हुआ है यहाँ पे, और जो टेम्परेचर जो इसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग होने वाली है, आप लोग इसमें बहुत बड़े कंट्रीब्यूटर हो। तो अमेरिका जो है वो सोसाइटी इस तरह से उन्होंने डेवलप किया है कि हर एक आदमी बस काम करता रहे और काम करके पैसा कमाए और चीज़ें खरीदे। तो वो एक प्रोडक्ट प्रोडक्ट मेकिंग और प्रोडक्ट कंज्यूम 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 कंजर क्या बोलते हैं उसे, कंजप्शन। कंज्यूमर सोसाइटी है। बस यूज एंड थ्रो, यूज एंड थ्रो, तो ऐसी सोसाइटी है। तो इतना कुछ खास नहीं है। एक चीज़ अच्छी है कि उनमें नई आइडिया, न्यू आइडियाज़ और नई विचारधाराएं, थॉट प्रोसेस को जो कल्टीवेट किया जाता है, वो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। और जो टेक्नोलॉजी जो है, जिस प्रकार से वो डेवलप करते हैं और सपोर्ट करते हैं इसको, तो वो एक अच्छी चीज़ है अमेरिका में, जिसको मैं अप्रिशिएट करता हूँ। और बाद में फिर मैं मैक्सिको से लेके ग्वाटेमाला, हंडुरास, एल साल्वाडोर, फिर पेरू, कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरू, और पेरू से फिर फ्लाइट लेके साउथ अफ्रीका चला गया। और साउथ अफ्रीका के बारे में मैंने बताया था आपको, तो साउथ अफ्रीका से लेके इजिप्ट तक लगभग 11 महीने मैंने पद यात्राएँ की। और साउथ अफ्रीका हम 7 लोग थे, उसके बाद एक जापानीज के बुद्धिस्ट मॉन्क, हम दोनों एक साथ साउथ अफ्रीका से लेके केन्या तक पद यात्राएँ की। तो साउथ अफ्रीका और अफ्रीकन कंट्री काफ़ी पीसफुल है। और साउथ अफ्रीका को छोड़ के वहाँ पे भी पीस है, लेकिन हाँ, लेकिन बहुत बहुत दिक्कत है एज ए इकोनॉमी की वजह से। लेकिन बाकी देशों में काफ़ी ईजीनेस है। नेचुरल आपको प्योर ड्रिंकिंग वाटर मिलेगा, प्योर एयर मिलेगी, ऑर्गेनिक खाना मिलेगा। तो जिस प्रकार से हमारे देश में जो केमिकल का या फर्टिलाइजर का इस्तेमाल किया जाता है,
वो खाना इतना अच्छा नहीं है अरे वो जिस प्रकार से उससे, क्योंकि उससे बहुत सारा पोल्यूशन हो रहा है, तो वो बहुत बड़ी दिक्कत है और हम बहुत बड़े क्राइसिस में है इसकी वजह से। तो उस अफ्रीकन देश में अभी भी फर्टिलाइजर वगैरह ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होता, उसकी वजह से जो खाना है काफ़ी प्योर है। तो एक प्योर देश है पूरे ये, और वो इनोसेंट लोग हैं, अपने जैसे शातिर दिमाग नहीं है कि यहाँ से पैसा कमाना है वहाँ वो करे, काला काला धंधा और वो सारी जो चीज़ें हैं, करप्शन जो चीज़ें वहाँ पे हमारे वजह से वहाँ पे पलटने लगी है अभी। लेकिन जो नॉर्मल लोग हैं गाँव के, बहुत सिंपल सादे सुथरे हैं और सिंपल जीवन जीते हैं। और इजिप्ट मेरा आखिरी देश था। गाजा पिरामिड जो है वहाँ से चल के मैं पोर्ट साइड करके जो स्वेज कैनाल का एंट्रेंस है मेडिटेरेनियन ओशन में, वहाँ तक मैंने पद यात्रा की। फिर वहाँ से यूके चला गया, और लंदन में मैंने गांधी जी की 150वीं जयंती मनाई, जहाँ पे पार्लियामेंट स्क्वायर पे दुनिया में 10 से 12 लोगों की मूर्तियाँ लगाई गई है, जो टॉप दुनिया के बेस्ट लोग हैं उस उनमें उनमें गांधी जी की मूर्ति लगाई है वहाँ पे बहुत बड़ी। तो वहाँ पे मैंने 2 अक्टूबर 2019 में मेरा दिन बताया। फिर वहाँ से जर्मनी, स्पेन, पुर्तगाल, तुर्की, फिर कोविड चला आया। फिर कोविड के बाद भी मैंने पद यात्रा की, और जॉर्जिया, तुर्की, सर्बिया, मैकेडोनिया, अल्बानिया, फिर वहाँ से होके उज़्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, उज़्बेकिस्तान, अफगानिस्तान। अफगानिस्तान में ट्राई कर रहा था कि पाकिस्तान का वीज़ा लूँ, लेकिन हाँ पाकिस्तान का वीज़ा नहीं मिल पाया मुझे। लेकिन फिर भारत आके फिर मैंने 6 महीने लगाए और फाइनली पाकिस्तान का वीज़ा लेके हमने कराची में एक अद्भुत यात्रा की। और उसमें बहुत सारे इंडियन पाकिस्तानी, हम 3 भारतीय और पाकिस्तानी लोग, हमने वो यात्रा की और काफ़ी अद्भुत यात्रा रही। वो बहुत प्यार दिया मीडिया ने, लोगों ने। और लाहौर जिसमें एक यूनाइटेड स्कूल है, यूनाइटेड स्कूल और कॉलेज, जो कि लाहौर में है। तो वहाँ पे हमारे एक वॉल लगाई गई है जिस पे पीस वॉल से बोलते हैं। तो उसका उद्घाटन हमने किया और उसके ऊपर हमारा भी नाम है वहाँ पे। तो एक प्यारी मेमोरी हमने पाकिस्तान में छोड़ी है, लाहौर में। और वापस फिर चलें, लाहौर इंडिया भी है। लाहौर का विजिट हुआ तो सर जरूर जाके देखेंगे। लाहौर की तो अभी ये पतली गली की याद आती है बार बार। पतली गली जो है, तो वहाँ से बहुत बार गुजरे हैं हम। हालांकि हमें कोई गर्लफ्रेंड नहीं मिल पाई। कोई कोई बोलते हैं कि वहाँ जाने के बाद तो बहुत ट्राई किया, लेकिन अकेले अकेले चले आए 2-3 बार, तो ज़्यादा कुछ हो नहीं पाया। लेकिन हाँ लाहौर में, लाहौर के आप क्या बोलते हैं, क्या क्या लाहौर में था। आ, हाँ लाहौर में, हाँ हम जो पुराना शहर है वो बहुत पसंद आया मुझे। सॉरी, जो पुराने शहर रिपीट में कीजिएगा। जो, सॉरी, रिपीट कीजिएगा, वॉइस नहीं आई। हाँ लाहौर में जो लाहौर का पुराना शहर है बहुत खूबसूरत है वो। वहाँ पे बहुत बार मैं पैदल चला हूँ। और वहाँ का जो खाना है, और स्पेशली जो दुकानें हैं, मसालों की दुकानें हैं और फिर बाद में कपड़ों की दुकानें बहुत प्यारी है। और भजिए के पाए वो खाए सर आपने वहाँ में? क्या, पाए पाए जो मशहूर है वहाँ के, वहाँ खाए वो? पाए, ये क्या होता है? हाँ जी, पाए पाए खाने के लिए ना, जो मशहूर डिश है ना लाहौर की, मैंने कहा वो आपने ट्राई की? ये मीट की होती है क्या? अपना, हाँ जी, अपना हाँ चिकन में भी है, मटन में भी है। हाँ, क्योंकि मैं वेजिटेरियन हूँ तो फिर मैं एक ऐसा, क्योंकि लाहौर के लोग बताते थे, तो मुझे अभी भी फनी लगता है कि बोलते हैं कि भाई हम इतने घूसखोर है कि जब लाहौर की गलियों में सुबह जब लोग कचरा साफ करते हैं तो उनको बस हड्डियाँ मिलती है। तभी इंडिया में जिसे भी मिलता हो किसी से, तो बताता हूँ कि भाई जिसे नॉनवेज खाना है वो बस लाहौर चला जाए बस। वो इतना मांस खाते हैं कि हड्डियाँ ही हड्डियाँ सड़कों पे मिलती है वहाँ पे। तो ऐसी कुछ बातें हैं वहाँ की, लाहौर की। लेकिन हाँ लाहौर जो ह्यूमन राइट कमीशन ऑफिस है, वहाँ पे हम रुके थे तो बहुत प्यार हमें मिला था वहाँ पे। और लाहौर में एक दरगाह हम चले गए थे जहाँ पे एक हिंदू और मुस्लिम, दो संत, वो दोनों की कब्र एक ही एक उसमें है। क्या बोलते हैं उसे, दरगाह, एक ही दरगाह में हिंदू और मुस्लिम दो संत एक जगह ही दफनाए गए थे। तो वो एक मेमोरेबल मेमोरी रही थी हमारी लाहौर। सर नाम क्या था इसका, दोबारा बताइएगा, मैंने नहीं देखी हुई, मैं जाऊँगा इस पे।
इसका नाम मैं अभी भूल रहा हूँ, लेकिन मैं आपको टेस्ट करूँगा, सॉरी कमेंट में आपको मैं डाल दूँगा, क्योंकि मेरे गूगल मैप पे उसको सेव किया गया है। तो वो सही। बहुत सुंदर तो ये है, सूफी संत एरिया है, जहाँ पे कव्वाली वगैरह गाई जाती है, सूफी सॉन्ग गाए जाते हैं। तो एक बहुत अच्छी जो परंपरा थी भारत पाकिस्तान और स्पेशली हिंदू मुस्लिम का जो मिलाप हुआ, उसमें सूफीज़्म ने बहुत बड़ा रोल अदा किया था। तो उसकी वजह से हमें बिल्कुल। वहाँ पे जाना ही था वहाँ पे। और वहाँ की जो कमिटी है उन्होंने बहुत प्यार दिया हमें, हमारा काफ़ी बढ़िया स्वागत किया उन्होंने, और दुआ भी हमने पढ़ी वहाँ पे। सर नेक्स्ट विजिट कब कर रहे हैं? हाँ, नेक्स्ट विजिट अभी तो मैंने थोड़ा स्टॉप किया इंटरनेशनल ट्रैवल को, थोड़ा सा स्टॉप किया है। और लेकिन आना है पाकिस्तान, फिर एक बार आना है, लेकिन इस बार बस पद यात्रा करनी है, क्योंकि लास्ट टाइम जब आया था तो 3 शहरों गया था। तो अभी मैं लाहौर से लेके पेशावर तक पद यात्रा करना चाहता हूँ। तो गवर्नमेंट ने जैसे चलिए। मंजूरी दी, तो फिर 2 महीना पद यात्रा करूँगा चलते चलते चलते। तो देखते हैं कि कब पॉसिबिलिटी और अपॉर्चुनिटी मिलती है। तो सर ज़रूर याद रखिएगा। और क्योंकि आपने कहा था कि मैं दोस्त उसी को बनाता हूँ जो जिसको मैं बाय फेस जानता हूँ। तो आज हम लाइव तो हो गए हैं, तो यहाँ तक अभी तो फ्रेंडशिप हो गई, अब जो है बाय फेस अब जब आप आएंगे तो फेसबुक इंशाल्लाह। फ्रेंड पे हम, हाँ, फेसबुक पे फिर दोस्त बन जाएंगे। जी, हाँ जी। थैंक यू मोहम्मद भाई। और तो आप कहाँ पे रहते हैं? सर मैं सांगड़ में रहता हूँ। सांगड़ कहाँ पे है? इंटीरियर, ये इंटीरियर सिंध में है, हैदराबाद से थोड़ा सा आगे है। हैदराबाद से 2 किलोमीटर, 120 किलोमीटर का फासला है, तकरीबन 2 घंटे लगते हैं। तो शिकारपुर के आसपास है? शिकारपुर सर आगे चला जाता है। शिकारपुर जो है ना वो सत्थर वाली साइड चला जाता है। ये पीछे है। सक्कर, जैसे ही हाँ। आप सांगड़ अपना कराची से निकलते हैं, तो कराची से ये टोटल 3 साढ़े 3 घंटे का डिस्टेंस है। कराची की ओर है? हाँ, कराची से मतलब हैदराबाद, हैदराबाद से ये सांगड़ आ जाता है। सांगड़ के फिर आसपास जो है नवाबशाह आता है, मीरपुर आता है। ओके ओके, उस तरफ हम तो आए थे, और कार से हमने शिकारपुर से लाहौर तक कार से सफर किया था हमने। लेकिन रास्ते में एक बाय बहुत रोड गए, बड़ी चीज। बाय रोड गए सॉरी, थे, बाय सॉरी। रोड गए थे आप? हाँ, मैंने कहा बाय बाय रोड हम, रोड गए थे। हाँ, एक जाते समय ट्रेन से गए थे कराची, और आते समय बाय बाय रोड आए थे। जो नेशनल हाईवे है, हाँ जो तो बहुत बड़ा मेट्रो वे, नेशनल मेट्रो वे से आए थे। नेशनल जी, और नेशनल बहुत पसंद हाईवे आया से मेट्रो आएंगे वे तो जो आप। बनाया, हाईवे जो बनाया है वहाँ का बहुत प्यारा था। और 160 किलोमीटर पर आवर पे आराम से हम चल रहे थे वहाँ पे। तो बहुत जबरदस्त सही हाईवे सही। मेट्रो वे बनाया है वहाँ पे। और ट्रक बहुत पसंद है मुझे। पाकिस्तान की जो ट्रक है वो बहुत प्यार से सजाया हुआ है, अच्छा, तो बहुत सजाया हुआ है अच्छे से, तो ट्रकों की याद आती है। उसके साथ फोटो भी लिए मैंने बहुत तो, सारे। तो हाँ, तो उस पर पाकिस्तान ट्रैवल के करके देखा। ट्रैवल नहीं कर पाया, लेकिन हाँ नेक्स्ट टाइम आके फिर शायद ट्रक में ट्रैवल करूंगा। लेकिन हाँ, पाकिस्तान का जो ट्रांसपोर्ट है बहुत डेंजरस है। बहुत क्या बोलते हैं उसे, हेवी ड्राइवर है सब लोग। हेवी हेवी ड्राइवर सही इसे बोलते हैं, उस प्रकार से है। सही सही। थोड़ा सा उसके संभल के बाद चलना सर पड़ेगा। थर वाली साइड हमारे नज़दीक है। थर जो है ना हमें नज़दीक लगता है यहाँ से। जरूर जरूर, मोहनजोदड़ो हम तो जाना चाहते थे लेकिन मिस करके मोहनजोदड़ो। लेकिन हाँ, कराची जो म्यूजियम है वो बहुत पसंद है। कराची जहाँ पे हड़प्पा सिविलाइजेशन भी है, जो इंडिया पाकिस्तान को मिलाती है, जो लोगों को मिलाती है, जिससे हम ये सिविलाइजेशन पनपा, जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है, मोहनजोदड़ो सिविलाइजेशन है। तो वो काफ़ी इंटरेस्टिंग था कराची में। जैसे कि दोनों देश आप एक साथ आ सकते हैं। और फिर लाहौर में जो म्यूजियम है बहुत ही सुंदर है, और उसमें जो बुद्ध की जो मूर्तियाँ हैं वो काफ़ी इनक्रेडिबल, जैसे कि वो आइकॉनिक जो मूर्ति है जिससे वो बुद्धा पीपल के पेड़ के नीचे बैठते हैं, अंटिल टू लाइक, जैसे कि पूरी हड्डियाँ वगैरह पूरा मांस निकल जाता है और हड्डी के ऊपर ऐसे बैठते हैं। तो वो एक आइकॉनिक फिगर है, और जो काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी इंस्पायरिंग मूर्ति जो मैंने देखी लाहौर में। अभी तो मैं बुद्धिस्ट टेम्पल में हूँ, यहाँ पे जापानीज टेम्पल है, तो यहाँ पे अभी रुका हुआ आज रात के लिए। सर करतारपुर गए थे? करतारपुर नहीं जा पाए, क्योंकि जो इंडिया पाकिस्तान का जो दिक्कत है कि वो बस सिटी की लिए वीजे देते हैं, तो हर जगह नहीं जा सकते आप। जहाँ से इनविटेशन होता है वहाँ पे हम जा सकते हैं। तो शिकारपुर, लाहौर और सही। कराची, ये 3 शहर के बाहर भी हम नहीं निकल पाए, क्योंकि जो वीज़ा रिस्ट्रिक्शन है उसको हमें फॉलो करना चाहिए, तो उसकी वजह से हम नहीं जा पाए। तो हाँ, नेक्स्ट टाइम करतारपुर तो जा सकते हैं कभी भी, जैसे कि इंडिया से अभी तो ईजी है।
तो करतारपुर भी हाँ जाना जी। है एक बार। करतारपुर में हम मिल सकते हैं लोगों से, और बहुत सारे इंडिया पाकिस्तान के दोस्त एक दूसरे से मिलते हैं करतारपुर में। तो नेक्स्ट टाइम तो करतारपुर ईजी है, कभी भी जा सकते हो वहाँ पे। अच्छा सर, एक चीज़ आपने फील की होगी कि हमारा जो है इंटरनेशनल लेवल पे मतलब ऊपर ऊपर जो हुक्मरानों में वो एक है, ये जो जस्ट अपना डिफरेंसेस, लेकिन अवाम में आपने मोहब्बत पाई होगी कि अवाम आपस में मिल बैठ के वो फ्रेंडशिप के रिलेशन रखना चाहती है, लेकिन ऊपर लेवल पे जो है ये इश्यूज क्रिएट हुए हैं। ये सही है कि आवाम में इतना कोई हेट्रेड नहीं है। और मैं पाकिस्तान गया तो लोगों ने बहुत प्यार दिया मुझे, रिक्शा वालों ने पैसे नहीं लिए, खाने के लिए पैसे नहीं लोग लेते थे, तो बहुत प्यार दिया। जैसे इंडिया पाकिस्तान, और इंडिया में भी यही है कि दोनों जगह के, जैसे मुझे लगा कि इंडिया में इतना नहीं है, लेकिन जब भारत में आया तो मैं लोगों से बात की और समझ रहा था, तो इंडिया में भी ऐसा नहीं है इतना ज़्यादा जिस प्रकार से मीडिया दिखाती है। बस ये मीडिया का खेल है, जो टेलीविज़न है वो जी। बस हमें डिस्टर्ब करता है। और हाँ, बहुत कुछ प्रॉब्लम है, लेकिन वो प्रॉब्लम ऐसे नहीं है कि सॉल्व नहीं हो सकते हैं। वो लोग आपस में लोग बैठ के इसका सॉल्यूशन कुछ निकाल सकते हैं। और बहुत सारी चीज़ें हैं, बस स्टोरिया है, उसमें कुछ इतना दम नहीं है। सर एक लेकिन वो शॉर्ट शॉर्ट सा एक्सपेरिमेंट है कि देखें, ये जो अपना पाकिस्तान इंडिया का मैच होता है, तो उसमें जो क्राउड है वर्ल्ड कप फाइनल में इतना नहीं होता जो इन दोनों टीमों के मैचेस के अंदर एक आपको जश्न मिलता है और एंजॉयमेंट मिलती है। आ, वो राइवली की तरह है, राइवली की तरह फनी भी है, कभी कभी फनी भी हो जाती है। और हाँ, लेकिन बहुत प्यार, लोग एक दूसरे से पहली बार, वो एक अच्छा जरिया है जहाँ पे इंडिया पाकिस्तान लोग एक दूसरे से मिलते हैं। तो वो भी एक अपॉर्चुनिटी होती है लोगों के लिए कि पाकिस्तानी भारतीय से मिले, भारतीय पाकिस्तान से मिले और इंजॉय करें मैच का। तो इंटरेस्टिंग है। मैं भी एक बार देखना चाहता हूँ भारत पाकिस्तान की मैच। तो लेकिन हाँ, लाहौर में मैंने क्रिकेट खेला है, तो मज़ा आया था। सड़क गली क्रिकेट मैंने खेला था लाहौर में। सही। सर लाहौर में क्रिकेट जब अब आए थे अभी खेला था? हाँ, अभी जब आया था मैं, तो लोग बच्चे खेल रहे थे क्रिकेट गलियों में, इस बाजू में से कारें जा सही रही है, सही। और ये बड़े बड़े बॉलर फास्ट बॉल डाल रहे हैं और प्लेयर मार रहे बिल्डिंग के ऊपर, लोगों को गेंद खिला रहे हैं। तो मैंने भी एक दो बॉल खेल ली वहाँ पे उनके साथ। सही। तो वहाँ पे तो वो सर यादगार मोमेंट था मेरा। मेरे और मेरे लिए कोई सजेशन आगे फ्यूचर के लिए और वर्किंग के हिसाब से? अरे यार, आई थिंक सो यू आर डूइंग वेरी वेल। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग, कि आपने मुझे इनवाइट किया यहाँ पे। और हालांकि मैं समय नहीं दे और पाया कोई था आप क्योंकि ऐसा ट्रैवलिंग था। एक्सपीरियंस शेयर करना चाह रहे हैं? सॉरी। मैंने कहा और कोई ऐसी बात जो आपकी बहुत यादगार हो वो आप शेयर करना चाह रहे हैं? बहुत सारी चीज़ें हैं, इतने कम समय में तो नहीं बता सकते, लेकिन हाँ, अगली बार फिर एक बार हम करेंगे तो अच्छे से बता पाएंगे। कि अभी मैं इस सूरज की रोशनी में खड़ा हूँ, बाहर के इंटरनेट नहीं मिल पा रहा है, यहाँ पे नेटवर्क नहीं है ठीक से। तो लगता है हम यहाँ पे रुकेंगे, और नेक्स्ट टाइम जब आएंगे तो जरूर बात करेंगे। सही। सर बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने मुझे याद रखा और टाइम निकाला। जी, कि मैं तो टेक्स्ट भी थैंक यू करता जय रहता था, शेखर। मुझे ये होता था कहीं सर डिस्टर्ब ना जी हो जाए। जरूर। तो आज आपको जैसे टाइम मिला आपने मुझे फौरन फॉरवर्ड किया कि ना आ जाओ लाइव ना। तो बहुत बहुत शुक्रिया सर आपके टाइम का। तो इंशाल्लाह अभी थैंक मेरे यू। ख्याल फ्रेंड लिस्ट कंफर्म हो जाएगी मेरी। जरूर जरूर मोहम्मद भाई, थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड इनविटेशन, एंड विल सी इन फ्यूचर। और जय जगत। ठीक। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू, टेक अल्लाह केयर, हाफिज। बाय। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। टेक केयर।